Dear cadets on DC online platform, I am Sunil Kakadi, faculty in mathematics. Now in this session we will see very important topic, that is a maximum and minimum value of the function. This topic is from the application of derivative. So let's start. जो question है लिखा है, this direction is given. Consider the function f of x is equal to 0.75 x raised to 4 minus x cube minus 9x square plus 7. In the first question, in that what is the maximum value of the function? We have to find out the maximum value. And the second question, consider the following: the function attains local minima at the point x is equal to minus 2 and x is equal to 3. And the second statement, in that the function increases in the interval minus 2 to 0, minus 2 and 0. Which of the above is are correct? मतलब दोनों में से कौन सा सही है और दोनों से ही आपको ये बताना है. The question f of x is given, this function, ये क्वेश्चन पहले इंडी में पूछा गया है. See here, we will see the first one. In that the given function as f of x is equal to this 0.75, we can write 3 by 4 x raised to 4 minus x cube minus 9x square plus 7. 0.75 as 3 by 4. So now differentiate to find the local minima and maxima. We have to find out the first derivative to find the critical points. So derivative of this function is 3 by 4 constant as it is. X raised to 4 आएगा 4 into x cube minus 3x square minus 18x plus derivative of 7 is 0. So 4 get cancel out. F dash of x is 3x cube minus 3x square minus 18x. To find maximum or minimum value, consider f dash of x is equal to 0. To find maximum, यहाँ भी आपको maximum पूछा है. To find maximum value, f dash of x is equal to 0. Remember this. To find the maximum or minimum value, consider f dash of x is equal to 0. तो है मेरे पास f dash of x है, उसको consider आपको 0 करना है. To find the value of x, that is to find the critical points. So it implies that ये आ जाएगा 3x cube minus 3x square minus 18x is equal to 0. So डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0. यहाँ से x कॉमन आ सकता है, x क्यूब x स्क्वायर x है, x कॉमन तो आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. Now the factors of this term, x as it is, the factors of this we required product minus 3 and addition minus 1. तो यहां से आ सकता है, देखो minus 3 product and addition minus 1. So if I consider, sorry, I think यहां 6 आएगा. If I divide by 3, it gives the 6. It gives 6. So यहाँ पे 6 आ जाएगा after dividing 3. So we require product minus 6 and addition minus 1. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 into 2 minus 3 and plus 2, minus 6 आ जाएगा और minus 3 plus 2 minus 1. तो फैक्टर्स आते हैं यहाँ से x minus 3 and x plus 2 is equal to 0, right? So एक तो हो सकता है x is equal to 0, first factor. Second, x is equal to 3, and third one x is equal to
minus 2, right? We get the values of x 0, 3 and minus 2. Now after getting this values of x, differentiate f dash of x once again to find the maxima and minima. So f double dash of x is equal to, ये आ जाएगा 9x square minus 6x minus 18. So to check the maxima or minima, put these given values. We have to find out here what is the maximum value of the function. तो हर एक पॉइंट के लिए हम चेक करेंगे उसका वैल्यू निगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है. सो फॉर x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे. तो f डबल डैश ऑफ x फॉर 0 के लिए यहाँ देखो आ जाएगा -18, ये 0 आ जाएगा. इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0 हियर, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, ये 0 आएगा तो बचेगा -18. दिस इज लेस देन 0. जब लेस देन 0 आता है इट इज कॉल्ड एज मिनिमा, इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमा, इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमा. रिमेंबर दिस, जब लेस देन 0 आता है, जब निगेटिव आएगा इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमा. सो नाउ विल चेक फॉर x is equal to 3. So f double dash of x is equal to, for of x is equal to 3 के लिए हम चेक करेंगे. For x is equal to 3, for x is equal to 3, put this value here 3. तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 9 into x is 3, 3 square 9 minus 6 3s are 18 minus 18. So 9 9s are 81 minus 36. So f double dash of x, देखो ये कितना आएगा, 81 minus 36. So 81 minus 36, it gives 11 5 remaining 1, so 4, this gives 45. So it gives 45. f double dash of x is gives 45. This is greater than 0. जब greater than 0 आता है it gives the point of minima. ये आपका देगा minima देगा. This is minima. Now for x is equal to -2 और एक पॉइंट है x is equal to -2. तो -2 के लिए हम चेक करेंगे. So f double dash of x, f double dash of x at x is equal to -2 put here. तो ये आ जाएगा 9 into -2 का स्क्वायर 4, then -2 into यहाँ -6 है तो ये आ जाएगा -+ 12, then -18. So it gives 36 minus 6, 12 minus 18 minus 6, it gives 36. Sorry, it gives the 30. f double dash of x is 30, which is greater than 0. It also gives the minima. It gives the point of minima. जब भी वैल्यू आपका लेस देन 0 आता है f डबल डैश ऑफ x का, वो मैक्सिमा देता है. जब वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 आता है, दैट इज पॉजिटिव में आता है, उस टाइम वो क्या देता है, मिनिमा. दिस बोथ x इज इक्वल टू 3 के लिए मिनिमा दे रहा है, x इज इक्वल टू -2 के लिए भी क्या है आपके पास मिनिमा दे रहा है. लेकिन क्वेश्चन को क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो कौन से पॉइंट के लिए f डबल डैश ऑफ x आपको मैक्सिमा दे रहा है, x इज इक्वल टू 0 के लिए ये आपके पास मैक्सिमा दे रहा है. तो x इज इक्वल टू 0 के लिए हम उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन फंक्शन दैट इज f ऑफ x में पुट अप करेंगे. सो if I put this value x is equal to 0 in this, it gives so f of x for x is equal to 0. तो यहां से 0 आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म also 0, थर्ड टर्म is also 0, it gives only 7. So f of x is equal to 7. This is the maximum value of this
फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। इसमें और एक क्वेश्चन है, सेकेंड वन। द फर्स्ट इज कंप्लीट, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 7 आ रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज वैल्यू इज 7, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट इज कंसिडर द फॉलोइंग, द फंक्शन अटेन्स लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3। ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया ये आंसर, अटेन्स द लोकल मिनिमा। ये क्या पूछा है यहाँ पे, लोकल मिनिमा पूछा है। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 के लिए क्या आपके पास आ रहा है, मिनिमा आता है। लोकल मिनिमा और मिनिमा दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। x इज इक्वल टू 3 मिनिमा आ रहा है, x इज इक्वल टू 3 मिनिमा आता है, मतलब ये दिस इज करेक्ट। एंड x इज इक्वल टू -2 it is also gives the minima. It means x is equal to -2 and x is equal to 3. This function gives the local minima. X is equal to 3 and x is equal to -2. It gives the local minima. मतलब यह statement हमारा correct है. The given statement is the correct one. Now the second statement is the function increases in the interval -2 to 0, -2 एंड 0 के बीच में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो उसमें चेक करेंगे ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा इन दिस इंटरवल। सो आप चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल टू -2, फॉर x इज इक्वल टू -2 द फंक्शन गिव्स द वैल्यू 30। कितना दे रहा है आपके पास, है वैल्यू 30 दे रहा है। फॉर x इज इक्वल टू -2 इट गिव्स दी 30 एंड फॉर 0 के लिए कितना वैल्यू देता है, ये -18 दे रहा है। लेकिन आपको ये ओपन इंटरवल है, दिस इज द ओपन इंटरवल, इट गिव्स द वैल्यू 30 फॉर x इज -2 एंड बिफोर द 0 से पहले ये वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव देगा। फॉर इफ यू इंक्रीज द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 आप जाएंगे, फॉर x इज इक्वल टू 3 इट गिव्स द वैल्यू 45। इट मीन्स द फंक्शन इज इंक्रीजेस इन द इंटरवल -2 एंड 0। दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट इज करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर correct statements. This questions इंडिया में पहले पूछा गया था, note down this is a very important question. Now example next, direction is given, consider the function f of x is equal to x square minus 1 x square plus 1 where x is belongs to real number. So in that first question, at what value of x does f of x attains minimum value? At what value of x? तो x का कौन से वैल्यू के लिए ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेकेंड में आपको उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड फर्स्ट में आपको कौन से वैल्यू के लिए ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। तो फर्स्ट में आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेकंड में आपको f ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x we require the derivative, differentiate the given function. So f of x is given function है this one, उसको मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो ये देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट आ जाएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे u अपॉन v का रूल आपको यूज करना है, u upon v, consider this u and consider this v, u by v rule of derivative. So v as it is, so x square plus 1 as it is into derivative of u, so derivative of x square is 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, माइनस u as it is x square minus 1 as it is derivative of v, that is 2x whole divided by v square, so x square plus 1 whole bracket square. So if I simplify this term, 2x and 2x, take 2x common, if I take 2x common it gives x square plus 1 minus, ये तो 2x कॉमन बाहर लिया है तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. So minus x square plus x square cancel out, so it gives 2x and 1 plus 1 2, 2 into 2 4, it gives the 4x upon x square plus 1 whole bracket square. This is
f dash of x. So f dash of x आ रहा है, f dash of x is 4x upon x square plus 1 whole bracket square. This is the value of f dash of x. To find the maximum or minimum value, consider f dash of x is equal to 0. To find, अभी यहाँ मिनिमम पूछा है तो मिनिमम लेंगे, मिनिमम वैल्यू. टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, कंसिडर f dash of x is equal to 0. So it gives 4x upon x square plus 1 bracket square is equal to 0. Now क्वेश्चन में आपको दिया है x belongs to real number. x belongs to real number. It means the value of x is belongs to real number. If I put any value of x in the denominator, भाई यहाँ पे x का वैल्यू पुट करता सपोज -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 plus 1 2 ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज 4 आ जाएगा. If I put x is equal to 0 here, 0 plus 1 1 square 1, it means this denominator always give some value. तो डिनोमिनेटर कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं आने वाला है. If I put any value of x, any real values of x, तो ये कभी भी जीरो नहीं आने वाला है, बिकॉज x का स्क्वायर है और यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट हो जाएगा. सो आपको चेक करना है फॉर द न्यूमरेटर दिस वन. इसके लिए हम चेक करेंगे बिकॉज ये तो ऑलवेज एग्जिस्ट हो रहा है. एग्जिस्ट जब होता है तो आपको न्यूमरेटर को देखना है. देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 0. इट इंप्लाइज दैट x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. डिवाइड, इफ आई डिवाइडेड बाय 4 हियर, सो x इज इक्वल टू 0. तो मेरे पास x का एक वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू 0. तो आपको क्या फाइंड करना है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x डज f of x अटेन्स मिनिमम वैल्यू. आपको चेक करना है द मिनिमम वैल्यू. सो फाइंड आउट f डबल डैश ऑफ x. अब मेरे पास एक ही वैल्यू आ रहा है x का, उसके लिए चेक करेंगे f डबल डैश ऑफ x आपको वैल्यू पॉजिटिव देता है या नेगेटिव देता है. सो f डबल डैश ऑफ x चेक करेंगे. अगेन यहाँ पे u बाई v का रूल अप्लाई करेंगे, u बाई v रूल. तो v एज इट इज x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ v इज x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू दिस u एज इट इज 4x एज इट इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर करना है. ऑलरेडी मेरे पास 2 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा पावर 4. सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस टर्म, देखो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, ये 4 कॉमन आएगा और x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेकिन एक कॉमन आएगा. सो टेक 4 एंड x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन. तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एक तो बाहर आए तो एक रिमेनिंग आएगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 इज लेफ्ट, 4 ऑलरेडी बाहर लिया था, माइनस यहां से 4 बाहर कॉमन लिया है, x स्क्वायर प्लस 1 बाहर कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ 2 इंटू 2x एंड x 2 is 4 x into x square, that is 4x square is left here, 4x square divided by x square plus 1 raised to power 4. So x square plus 1 and x square plus 1 raised to 4, यहाँ तो पावर कितना बचेगा, 3 is left. So 4 x square minus 4x square, यहाँ पे बचेगा 1 minus 3x square divided by x square plus 1 whole bracket cube. This is f double dash of x. नाउ चेक करना है आपको x इज इक्वल टू 0, एक ही वैल्यू मेरे पास x का आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 यहां पुट अप कर देंगे और चेक करेंगे ये आपके पास वैल्यू कैसे देता है, इट यूज द नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू. सो फॉर x इज इक्वल टू 0, सो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू x का वैल्यू 0 आपको यहां पुट अप करना है. सो 4 इन ब्रैकेट
1 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो पूरा 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स इज 0, तो 0 प्लस 1 का क्यूब, सो इट गिव्स द वैल्यू 1 माइनस 0 1, 4 इंटू 1 4, 4 अपॉन 0 प्लस 1 1, 1 क्यूब 1, दैट इज आंसर गिव्स 4. 4 कैसा है? ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दिस इज मिनिमा, दिस इज मिनिमा. तो आपको ये पूछा था क्वेश्चन में, ये कैसा वैल्यू देगा? एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज द फंक्शन अटेन्स मिनिमम वैल्यू. सो मेरे पास ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, 4 is greater than 0, it gives the minimum value, right? So at x is equal to 0, at x is equal to 0, the function gives the minimum value. So therefore at, इसको देखो आंसर क्या आएगा पहले का, at x is equal to 0, the function attains minimum value, minimum value, right? ये फर्स्ट का आंसर हो चुका है. एट एक्स इजिकल टू 0 के लिए ये फंक्शन क्या करेगा? मिनिमम वैल्यू देगा. उसमें देखो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सो आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. एट एक्स इजिकल टू 0 ये फंक्शन क्या दे रहा है? आपका लोकल मिनिमा दे रहा है. तो एक्स इजिकल टू 0 के लिए हम f of x फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x? सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f of x. तो ये मेरे पास f of x है. एट x is equal to 0 के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये फर्स्ट का आंसर हो चुका है हमारा, यहाँ लिखा था भी चलेगा. दिस इज द फर्स्ट वन, ये फर्स्ट का सोल्यूशन था. नाउ द सेकेंड वन, देखो सेकेंड का सोल्यूशन क्या आएगा? वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू, minimum value of f of x, that is x is equal to 0 के लिए फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यू. सो f of x is equal to, गिवन फंक्शन में x का वैल्यू 0 पुट अप करना है. सो इफ आई पुट 0 हियर, 0 स्क्वायर 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा. सो 0 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1, it gives minus 1. So f of x is equal to minus 1. तो हमारा मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? That is minus 1. तो सेकेंड का आपका आंसर रहेगा, what is the minimum value of the function? So minimum value is minus 1. ये दो क्वेश्चंस थे. जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसी का यूज करके आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है. जब भी क्वेश्चन आता है डायरेक्शन का एग्जाम में, तो आपको फर्स्ट को ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, लेकिन उसमें जो सेकंड क्वेश्चन रहता है फर्स्ट का ही आपको आगे यूज करना पड़ता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप केयरफुली सॉल्व करेंगे तो आपका सेकंड का आंसर इजीली भी आ जाता है. सो दैट इज ये 2.5 और ये 2.5, इट गिव्स द 5 मार्क्स क्वेश्चंस. इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देंगे केयरफुली फर्स्ट क्वेश्चन को, तो सेकंड क्वेश्चन आपको इजीली भी सॉल्व होता है विद इन 2 लाइंस. लेकिन फर्स्ट आपको केयरफुली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है. जब भी क्वेश्चन डायरेक्शंस के आते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना है. जिससे वो सारे बच्चे एग्जाम में गलती कर देते हैं. यहाँ पे आपको पूछा है एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन. इन द सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. उसमें आपको फंक्शन का वैल्यू पूछा है, फर्स्ट में आपको x का वैल्यू पूछा था. एट x is equal to 0, at x is equal to 0 the function attains the local minima. And for the second we have to find out the value of the function at x is equal to 0, minimum value x, because ये मिनिमा आता है at x is equal to 0 के लिए, तो x is equal to 0 के लिए हम फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दैट इज वैल्यू आता है -1. ये क्वेश्चन इंडी में पहले पूछा गया है. नोट ऑन दिस, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.